Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session, which is on IoT penetration testing using Kali Linux. And for this topic, our expert is Dr. Saurabh Patel, sir, who is PhD, and he's done his master's in Terna and bachelor's from University of Mumbai. And as most of us know him, he is the ethical hacker, and he calls it as a self-studied ethical hacker. And we have always listened to him a lot in all the hands-on session which are there using Kali Linux. So welcome to you from Shan Anchor Kachi Engineering College's IT department. Over to you now, sir. Hope I am audible. Yes, sir, you are audible. Okay. Good afternoon, everyone. At least you can put yourself in a chat box so that I can feel that I am communicating with everyone. Otherwise, it is like a talking to a mirror and having a session. So I request anyone having a question or anything, I have put my chat box open so that I will continuously or frequently get connected to a chat box and see whatever questions are over here. Starting for the today's session, what is there in the bucket and what we will be learning today. Penetration testing, most of the people use the word as hacking. Fine, no worries in that, but a proper word is penetration testing or a pen testing for the IoT device. So what is the difference between penetration testing for a particular network or the device which comes into the like a handheld device or a laptop or any of the mobile devices and the penetration testing into the IoT devices? There are many factors and there are various vectors which get change when you go for IoT devices. हम लोग को अगर मेरे को बोला कि हम लोग को एक मशीन का पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है, द अप्रोच विल बी द डिफरेंट क्योंकि द पैरामीटर्स द आउटपुट्स एंड द values which will come out of that penetration testing will be different that which will be coming out of the IoT devices. As I will not go what is IoT devices as you have done for last 2 days. As IoT devices carry its own properties, so we have a very much concern about the IoT devices security over here. चलो ठीक है, IoT devices क्या होता है, कनेक्टिविटी होता है, हर जगह पे हम लोग अभी उसको देख सकते हैं. Everywhere, whichever device I can pick up, which can have some embedding power or processing power, and which get connected to some through direct or indirect way to the internet, we call it an internet or IoT devices. पर हम लोग जब इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, as it is one of the most open door right now for the innovation research, और उसके साथ ही वो और कुछ कैरी करता है अपने साथ, वो है उसकी वर्नेबिलिटीज. अभी वर्नेबिलिटीज क्या होती है, थ्रेट्स क्या होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे. आई हैव जस्ट लिस्टेड और जो 4 या 5 दिन पहले जो वर्नेबिलिटी लिस्ट आउट हुई थी, आई हैव जस्ट लिस्टेड वन. ऐसे बहुत सारे CVE कॉमन वर्नेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स में 2020 में द नंबर इज 11,114 विच हैज बीन रिपोर्टेड. अगर आपको कहीं पे भी कभी भी लगता है कि वर्नेबिलिटीज क्या क्या है या कौन सी वर्नेबिलिटीज हमको देखनी है, जस्ट गो ऑन द इंटरनेट. Just go on the internet and just type CVE IoT list for 2020. You get the most of the vulnerabilities which have been reported in year 2020 with the proper NIST number. और उसके बारे में आप उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं कि वो वर्नेबिलिटी क्या है, उसका रिपोर्टिंग फैक्टर क्या है, किसने किसने रिपोर्ट किया है, उसका रेटिंग कितना है, प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट कब हुआ था, डिक्शनरी में एंट्री कब हुआ था, और वो एक्चुअल में वो डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन विथ जिसने भी उसको नोटिफाई किया उसका भी डिटेल आपको आ जाएगा. ऐसे बहुत सारे वर्नेबिलिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं हमें कि हम लोग को वर्नेबिलिटीज मिलेगा कहाँ से, फ्रॉम वेयर विल फाइंड द वर्नेबिलिटीज. कि बाबा कि मेरे IoT डिवाइसेस में अगर मैं एक IoT डिवाइस पकड़ता हूँ रास्पबेरी पाई, या फिर मैं एक IoT डिवाइस पकड़ता हूँ विच इज अ डोर बेल, मैं एक IoT डिवाइस पकड़ता हूँ विच इज आइस कॉफी मेकिंग मशीन, तो उसमें वर्नेबिलिटीज अब तक क्या लिस्ट हुए हैं, यू हैव टू जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड फाइंड फॉर CVE फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस. आपको पूरा एक लिस्ट आ जाएगा और उसमें क्या क्या अटैक्स हुए हैं ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस विच हैज बीन नोटेड एंड लिस्टेड, आपको वो आ जाएगा.
कभी कभी रैपिड 20 करके भी सर्च करने का, विच गिव्स अ 0-day अटैक, जिसमें ऊपर वो टेस्टिंग के लिए रखा रहेगा वो डिवाइस, और उसके क्या क्या वर्नेबिलिटीज है आपके सामने आके रख देगा। आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे हो या फिर डायरेक्टली बोल रहे हो कि वर्नेबिलिटीज क्या क्या है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ going round and round, we can directly go to the point saying that every device will carry some vulnerability, and we as a penetration tester or pen tester, we have to find that vulnerability. हमें अटैक नहीं करना है, हमें उसका वो अटैक करके उसका बेनिफिट भी नहीं लेना है। एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर we have to just highlight the vulnerability of that particular IoT device। जैसे कि और एक vulnerability जहाँ पे over a million routers were vulnerable to a script execution। अगर एक स्क्रिप्ट वहां पे रन होते तो एक साथ सारे राउटर पे रन हो रही थी, एंड दे वर रीडायरेक्टिंग अ पैकेट टू अ लॉन्गर रूट। इससे क्या हो रहा था, द कम्युनिकेशन टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर in devices or connected devices was taking more time, and वो क्रैश कर रहा था नेटवर्क को। सो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स है विच टॉक अबाउट द IoT सिक्योरिटी। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम लोग उसका वेक्टर क्या है, किस डायरेक्शन में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहिए। तो आपको हमारा इंटेंशन क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न सिक्योरिटी इन 1.5 आवर, पर हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइट द वर्नेबिलिटी इन दैट ईच एंड एवरी IoT डिवाइसेस, कौन से वेक्टर से उसके अंदर देखना है। अभी हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं रास्पबेरी पाई लेके, आर्डिनो लेके, नोड MCU लेके, या फिर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग डिवाइस लेके, हम लोग को उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर का आज गलती क्या है, सबसे बड़ा गलती जो मैन्युफैक्चरर्स का है, दे आर ओवर रूलिंग द और जस्ट इग्नोरिंग द सिक्योरिटी फैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस। तो वो हम लोग को ओवर रूल करके हमको उसको सिर्फ उसके वर्नेबिलिटी की तरफ से देखना है। दैट इज व्हाट आई विल ट्राई टू डेवलप इन दिस 1.5 hour। तो as been said by the SADA regional Polo director, where IoT is a door for the innovation, but it carries the security or vulnerability factor along with it, where all the ecosystem around it will be affected if a particular device is harmed. So to understand the security, we need to understand the 4 factor TVAC, threat, vulnerability, attack and control। अभी यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, मैं सिर्फ आपको 3 का डेफिनेशन बताऊंगा, थ्रेट का, वर्नेबिलिटी का, अटैक का। यू हैव टू गिव अ डेफिनेशन फॉर द कंट्रोल। आप लोग को बताना है कि हम लोग कंट्रोल कैसे करें। This policy applies everywhere with the IoT devices and also with any of the security concerns। जब भी प्रैक्टिकल सिक्योरिटी करने बैठना है, CIA वो सब है, प्लस नॉन रेप्यूडिएशन एंड ऑथेंटिकेशन वो भी है, पर प्रैक्टिकली सिक्योरिटी पेन टेस्ट करने के लिए जब भी हम लोग बैठते, वी हैव टू इंश्योर दिस 4 फैक्टर्स, और उसमें से पहले 2 फैक्टर्स हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट रीजन आई एम टेकिंग इट ओवर हियर। थ्रेट। अभी थ्रेट मतलब आपको सबको डेफिनेशन तो पता रहेगा कि भाई साहब कि जब भी हम लोग को लगता है कि ये हो सकता है, हुआ कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी थिंक दैट कि देयर माइट बी दिस पर्टिकुलर अटैक विल बी डन ऑन माय डिवाइस। अभी सिंपल ले लो, आपने एक रास्पबेरी पाई लेके, आपने एक राउटिंग क्लस्टर ऑफ रास्पबेरी पाई लेके एक राउटिंग प्रोटोकॉल डिजाइन किया विच विल बी कनेक्टिंग मल्टीपल नोड्स, और आपको लगता है कि यहाँ पे अगर एक भी रास्पबेरी पाई के ऊपर कोई स्क्रिप्ट रन हो जाता है तो वो बाकी पूरे नेटवर्क को डाउन कर सकता है। तो ये आपने सिर्फ सोचा, हुआ कुछ नहीं है। दैट इज अ थ्रेट। ऑल पॉसिबल अटैक्स दैट माइट ऑकर ऑन अ नेटवर्क और ऑन गिवन डिवाइसेस, दे आर कॉल्ड एज थ्रेट। तो यू लिस्ट डाउन योर थ्रेट एज अ डेवलपर, यू विल लिस्ट डाउन। अगर उसने वीक पासवर्ड रखा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, अरे उसने नेटवर्क कनेक्टिविटी में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं यूज़ किया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, अगर उसने MQTT प्रोटोकॉल यूज़ किया तो ये प्रॉब्लम वो कैरी करता है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड स्टोर रहता है। अगर आपका जो IoT डिवाइसेस है वो ओपन स्पेस में है तो कोई भी उसको टैम्पर कर सकता है, और टैम्पर करके अंदर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना रहता है, RX एंड TX। वो करके UART डिवाइस से मैं उसको फीड कर सकता हूँ या फिर रीबूट कर सकता हूँ। तो ये सब आपके दिमाग में आ रहा है और आपने लिख के रखा, दैट इज नथिंग बट अ थ्रेट। ऑल पॉसिबल अटैक्स दैट कैन ऑकर
onto the system is nothing but the threat. अभी सेकेंड क्वेश्चन जो वहां पे लिखा है V for vulnerability, मतलब क्या? मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ, इट इज अ वीकनेस इन द सिस्टम. इट इज अ वीकनेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज vulnerability. कोई भी सिस्टम ले लो, अगर हम लोग IoT डिवाइस की बात करें, उस डिवाइस में अपडेट नहीं हो पाता, कंटिन्यूस अपडेट नहीं होता. अभी तो रास्पबेरी पे ले लो, अपडेट कंटिन्यूस और ऑटो अपडेट हो सकता है क्या? मेमोरी कंस्ट्रेंट है हमारे पास. नोड MCU ले लो, जो फर्मवेयर है वो ऑटो अपडेट हो सकता है क्या? हमें करना पड़ेगा पूरा डाउन करके, तो वो ऑटो अपडेट नहीं, क्योंकि मेमोरी कंस्ट्रेंट है. तो ये क्या हुआ, उसका वर्नेबिलिटी. और ऑटो अपडेट नहीं होने की वजह से जो डिवाइस बहुत टाइम से है वो सबसे हार्मफुल डिवाइस होता है. तो ये होता है उसका वीकनेस, वर्नेबिलिटी. अ वीकनेस इन द सिस्टम. अ प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम एंड ही हैज नॉट रिटन एनीथिंग फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, नहीं लिखा है उसमें. So that is a weakness what he have left for in the particular code or particular script in the given device. तो vulnerability is nothing but a weakness. अभी मैं अटैक का डेफिनेशन बोलता हूँ, कंट्रोल का आप लोग बोलोगे. सब तुम लोग को बोलना है, तभी मुझे पता चलेगा वी आर, मतलब देयर इज अ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. नहीं तो ऐसा लगेगा वन वे चालू है, हाफ डुप्लेक्स में. तो अटैक मतलब क्या? व्हेन द vulnerability is exploited and the threat which was considered came into the existence, that is called as attack. मतलब क्या? attack is the active entity where exploitation of vulnerability occurred and a possible threat came into the existence is called as attack. attack का definition क्या हुआ? attack मतलब when the vulnerability got exploited, मतलब जो vulnerability थी, जो सिर्फ डेवलपर को पता थी, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को पता थी, वो अभी अटैकर को या हैकर को, जो हम लोग बोल रहे हैं, उनको पता चल गई और उन्होंने वो वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, मतलब सब जगह पे बता दिया. और उस वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट होने के वजह से ऑल पॉसिबल थ्रेट्स, जो पॉसिबल थ्रेट्स है वो क्या हो गए? एक्टिव हो सकते हैं या फिर एक्टिव हो गए, तो वी कॉल इट एज अटैक. तो ये होता है तीन मेजर प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी: थ्रेट, वर्नेबिलिटी एंड अटैक. थ्रेट मतलब ऑल पॉसिबल अटैक, कुछ नहीं करेगा, इट इज अ पैसिव एंटिटी. ऑल पॉसिबल अटैक दैट कैन ऑकर ऑन माय सिस्टम. vulnerability says that the weakness which any particular device carries along with him, that is a weakness in a system. An attack is nothing but exploitation of weakness and occurrence of the threat. तो अभी सपोज मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे अटैक होने नहीं देना है या फिर मुझे कंट्रोल करना है अटैक को, तो मैं कैसे करूं? क्या फैक्टर के ऊपर मैं ध्यान दूं? एज अ पेन टेस्टर या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर और द सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मुझे मेरे डिवाइसेस पे, IoT डिवाइसेस पे या कोई भी कंपोनेंट डिवाइसेस पे, कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग कंपोनेंट पे मुझे अटैक होने नहीं देना, तो मुझे क्या ध्यान देना पड़ेगा? यू कैन जस्ट पुट इट इनटू द, कब होता है? जब भी वर्नेबिलिटी एक्सपोज हो जाती है. वर्नेबिलिटी मतलब वीकनेस एक्सपोज हो जाती है. मेरी वर्नेबिलिटी जब भी एक्सपोज हो जाएगी, तभी जाके जो मैंने सोचे हुए थ्रेट्स है वो ऑकर हो जाते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अटैक. वापस में डेफिनेशन देखो, उसमें छुपा है आंसर. अटैक मतलब क्या होता है? व्हेन द वर्नेबिलिटी गेट एक्सप्लॉइटेड एंड ऑल पॉसिबल थ्रेट्स विच वर नोटेड, उसमें से कोई तो थ्रेट ऑकर हो जाता है, सो वी कॉल इट एज अ अटैक. तो कंट्रोल कैसे करना है? फायरवॉल और कुछ? अभी भी पॉइंट पे नहीं आया कोई? बाय इम्पोजिंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म चलेगा. अटैक जब होता है, जब भी मेरा एक वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट होता है, तभी जाके एक्सप्लॉइट होने के बाद जो थ्रेट्स मैंने पाइथन का रास्पबेरी पाई पे प्रोग्राम लिखा कनेक्टिविटी का, जहाँ पे अपना WPA सप्लीमेंट्स में जाके मैंने मॉडिफाई किया, जो भी हॉटस्पॉट आएगा वो कनेक्ट हो सकता है. आफ्टर कनेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर हॉटस्पॉट, अगर उसने एक मेश नेटवर्क क्रिएट किया, उसने एक मेश क्लस्टर क्रिएट किया, वेरी इजी है, 15 लाइन का कोड होता है, यू कैन हैव अ क्लस्टर इन द IoT. एक मेश नेटवर्क क्रिएट किया,
उस मेश नेटवर्क में एक ऐसा नोड है जो कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर रहा है, जिसके लिए मैंने मेरे रास्पबेरी पाई पे कोई भी प्रिकॉशन मैकेनिज्म नहीं लिखा है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। वो क्या हुई, मेरी वीकनेस हुई। अगर अटैकर को वो मेरी वीकनेस पता चली तो वो कौन सा अटैक करेगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करेगा। और जब वो एक्चुअल में करेगा तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अटैक बोलेंगे। तो मुझे कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू राइट द स्क्रिप्ट फॉर प्रोटेक्टिंग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, राइट। उसका ही मतलब होता है, चलो आई जस्ट नॉट वेस्ट टाइम, उसका ही मतलब होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या, अब वापिस आते हैं। आई कैन नॉट यूज माई आईपैड, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन इट वेरी मच बेटर, बट इन दिस वेबिनार सेशन as they suggested, I cannot, we cannot have a mobile device or a iPad as a sharing component. तो इसके लिए अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखो। अटैक मतलब जब भी वर्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होता है और थ्रेट ऑकरेंस में आ जाता है, उसको अटैक बोलते हैं। जब भी मुझे कंट्रोल करना है ना, थ्रेट को नहीं करना है, अटैक को हाथ नहीं लगना है, अपने को अपना वर्नरेबिलिटी क्या करना है, छुपा के रखना है। अगर वर्नरेबिलिटी ही एक्सप्लॉइट नहीं होगी, अगर वीकनेस ही एक्सपोज नहीं होगा, तो कभी भी थ्रेट ऑकर नहीं होगा, और थ्रेट ऑकर नहीं होगा तो हम लोग कभी भी उसको अटैक नहीं बोलेंगे। तो हमेशा याद रखो, कंट्रोल जब भी करना है ना, your major focus in a security is about hiding the vulnerability। हर एक सिस्टम में, हर एक प्रोटोकॉल में और हर एक जो भी कंपोनेंट, नेटवर्किंग कंपोनेंट, इसमें वर्नरेबिलिटीज होती है। हम लोग उसको जितना ज़्यादा हाइड करके रखते हैं या फिर उसको एक्सप्लॉइट होने के लिए कितना हर्डल्स ऐड करते हैं, उतना ही प्रोटेक्टिव हमारा सिस्टम होता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो when we do a bug bounting or when we do a vulnerability assessment, it should be difficult to find a vulnerability in a given system। vulnerability तो रहेगी, कितना भी करो थोड़ा बहुत तो vulnerability आपके सिस्टम में रहेगी। आपको उस vulnerability के hurdles क्रिएट करना। कंट्रोल मतलब कुछ नहीं है, कंट्रोल मतलब हाइडिंग द vulnerability, reducing the possible threat and reducing the chances of attack। अटैक क्यों होता है, ये वर्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होने की वजह से होता है ना। तो अगर मैंने वर्नरेबिलिटी को हाइड कर दिया या उसके लिए हर्डल्स क्रिएट कर दिया उसको डिटेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, कभी भी पॉसिबल थ्रेट ऑकर नहीं होगा। अगर पॉसिबल थ्रेट ऑकर नहीं होगा तो अटैक होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो दिस इज द सिक्योरिटी, एनी कंपोनेंट ऑफ द सिक्योरिटी, यू जस्ट पिक इट अप, read it, you will find the same thing। Even the steps for implementing a penetration testing is the same। हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते तो हमारा काम क्या मालूम है, हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को वर्नरेबिलिटी ढूंढना है और डेवलपर को और मैन्युफैक्चरर को बताना, भाई साहब आपके सिस्टम में ये वर्नरेबिलिटीज है, तो आप उसको हाइड करने का या फिर निकालने की कोशिश कीजिए। तो दैट इज नथिंग बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। क्लियर? ethical hacking or a penetration testing means the same। Fine, hiding the vulnerability so that you can control the attack, that is only a mechanism or a perfect mechanism to do the attack। Fine, yes, very well said। by knowing what kind of vulnerability is present in our system, we can try to hide them। कभी कभी पॉसिबल होता है कि हम लोग, अभी वाईफाई है, अभी आपको डोरबेल का एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द IoT डिवाइसेस में वो लिया जाता है इसलिए। अगर आप वो डोरबेल घर के बाहर ही रखोगे और उसको वाईफाई से कनेक्ट करोगे, MI का ले लो या फिर जो भी आप डोरबेल आप लोग IoT डिवाइस के अंदर ले लो, वो बाहर कनेक्ट करोगे, आपको पता है अगर मैं उसको ओपन करता हूँ, ओके, और उसके RX और TX में जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड, SSID का जो पासवर्ड वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर रहता है। सो आई गेट इजी एक्सेस टू अ वाईफाई पासवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर SSID, और मैं फिर कनेक्ट हो जाता हूँ, देन द होल राउटर इज एक्सेस एंड देन यू कैन एंटर टू अ नेटवर्क। सो जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम लोग हाइड नहीं करते, फिर हम लोग उसके लिए हर्डल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो थ्रू अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो यही हमारा पेन टेस्टर का काम होता है, टू हाइड द वर्नरेबिलिटी। पेन टेस्टर का काम होता है एक्सप्लॉइट द वर्नरेबिलिटी एज अ गुड पर्सन एंड टेल इट टू द मैन्युफैक्चरर एंड द डेवलपर, ताकि वो कंट्रोल कर सके इसे, वो कंट्रोल कर सके इसे। फाइन, तो बोले कि सर कौन से टॉप 10 वर्नरेबिलिटीज है, द लिस्ट वाज अपडेटेड बाय OWASP at 2018। अभी 2020 का अभी तक आया नहीं है, होप इट विल बी अपडेटेड।
the open web application security project which always give the top 10 vulnerabilities of each and every network का, IoT का, firewalls का, operating systems का, सबका। आप उनके वेबसाइट पे जाओ, आपको बहुत सारे टॉप 10 वर्नेबिलिटी। आप बोलोगे ना सर वर्नेबिलिटी क्या क्या हो सकती है IoT डिवाइस में, हम लोग ढूंढेंगे कैसे, क्या ढूंढना है वो ही हमको पता नहीं है, पेनिट्रेशन टेस्ट में तो ढूंढेंगे कैसे। तो अगर मैं टॉप 10 बता रहा हूँ और उसका बड़ा लिस्ट बनते जाएगा एंड इट विल बी changing according to the device and the application as well। नंबर ऑफ डिवाइस, हर एक का टेक्निक अलग है, हर एक का एनवायरनमेंट अलग है, उसके हिसाब से लिस्ट बदलते जाएगा। बट टॉप 10 IoT वर्नेबिलिटी जो आप लोग देख सकते हो या उसके वजह से ज़्यादा करके अटैक्स होते हैं वो है ये वीक, गेसेबल एंड हार्ड कोडेड पासवर्ड। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में यही मिलेगा, आपको हार्ड कोडेड पासवर्ड मिलेगा या फिर द पासवर्ड विच आर इन प्लेन टेक्स्ट और firmware defined। Insecure network services, very easily we can have a network services which can be does not have as good protocol as the steady or the handle device networking devices have the secure network services। इनसिक्योर इकोसिस्टम इंटरफेसेस, ऐसा नहीं कि हमारा डिवाइस बहुत सही है, तो वो डिवाइस मल्टीपल चीज़ों से कनेक्ट होता है, क्लाउड से कनेक्ट होता है, कोई सेंसर से कनेक्ट होता है, इंटरफेस से कनेक्ट होता है फॉर इंटरनेट, ऐसी जगह से कनेक्ट होता है। तो वहाँ पे अगर कोई वर्नेबल रहा तो भी हमारा पूरा नेटवर्क या फिर हमारा पूरा डिवाइस अफेक्ट हो सका। लैक ऑफ सिक्योर अपडेट मैकेनिज्म, हमारा अपडेट नहीं हो पाता, दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक। इनसिक्योर आउटडेटेड कंपोनेंट्स, जितना टाइम रखोगे उतना आपका वर्नेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनसफिशिएंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इनसिक्योर डेटा ट्रांसफर एंड स्टोरेज, lack of device management, insecure default setting and lack of physical hardening। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कर सकते हैं हार्डनिंग, ताकि मुश्किल हो जाए कोई भी सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस करना या एक्सेस करना, तो वो या IoT डिवाइसेस में थोड़ा वीक होता है। तो दिस आर द लिस्ट है, ऐसे नहीं कि ये सारी वर्नेबिलिटी सारे डिवाइसेस में नहीं, दिस आर द सम लिस्टेड एज अ टॉप 10 वर्नेबिलिटीज बाय OWASP। हम लोग उसमें से थोड़े बहुत आज देखेंगे कि कैसे वो एज अ वर्नेबिलिटी यूज करके अटैक हो सकता है। सो व्हाट इज एन IoT पेन टेस्ट, अभी आपको थोड़ा बहुत पता चला रहेगा। कोई भी कनेक्टेड डिवाइस हैज अ पोटेंशियल एंट्री पॉइंट फॉर द अटैकर। कोई भी कनेक्टेड डिवाइसेस में, कोई भी कनेक्टेड डिवाइस आप उठा लो, उसमें कोई ना कोई तो जरिया होता है जहां से एंट्री पॉइंट और अ बैकडोर और अ ports which get open for an attacker to enter into the system and do some do some harmful things। तो वो कंपोनेंट या वो एंट्री पॉइंट्स को हम लोग को रोकना है, तो हम लोग को पहले वो एंट्री पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे कहाँ से वो एंटर कर सकता है। तो दैट इज द पेनिट्रेशन टेस्टर वर्क, दैट इज ऑडिटिंग। वो एक डिवाइसेस का ऑडिट करता है इन द कंसेप्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सर्वर्स, इंटरफेसेस, उसके रिलेशन में वो ऑडिट जनरेट करता है एंड इन दैट ऑडिट ही ट्राइज टू आइडेंटिफाई वेदर द सिस्टम कैन बी अटैक्ड और नॉट। अब बोलोगे इसे कौन से डायरेक्शन में, अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहता हूँ फॉर IoT डिवाइसेस, इन व्हाट डायरेक्शन आई शुड गो फॉर और व्हाट आर द वेरियस वेक्टर दैट यू नीड टू कंसीडर। So you should consider the following vectors in the direction of implementing an attack or implementing a penetration testing on the IoT devices: hardware, firmware, network, wireless communication, mobile and web application, and cloud APIs। तो these are the multiple vectors, एक एक करके एक एक के अंदर है। हम लोग उसमें से वायरलेस आज देखेंगे, फिर नेटवर्क का देखेंगे, ओके, मोबाइल एप्लीकेशन का या पासवर्ड्स का हम लोग मेजरली आज देखेंगे। So these are the multiple vectors which are available through which you can do the penetration testing। अगर मैं एग्जांपल लेने जाऊँ हार्डवेयर का, तो हार्डवेयर का UART आपने सुना रहेगा अभी 2 दिन के सेशन में, जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके अंदर 4 पिन्स है, जिसमें TX एंड RX है। अब कोई भी प्रिंटर ले लो, उसको ओपन करो, उसका बोर्ड देखो आप, उसमें बोर्ड में आपको RX और TX का पिन मिलेगा एंड वन ग्राउंडिंग एंड वन वोल्टेज 1.8 या फिर उसके ऊपर का आपको मिलेगा। ये डिवाइस USB नोड एक साइड पे होगा और एक साइड पे 4 पिन रहेगा। यू कनेक्ट टू योर प्रिंटर सोल्डरिंग करके या फिर यूजिंग अ जंपर वायर्स यू कैन कनेक्ट टू अ प्रिंटर। क्या हो जाएगा, एज सुन एज यू कनेक्ट टू योर प्रिंटर, आप अभी वो जो भी हम लोग मैं काली लेंस को कनेक्ट करता हूँ और उस कंसोल के थ्रू में
बाइनरी कंसोल के थ्रू मैं वो प्रिंटर को आई कैन गिव सम कमांड्स और आई कैन राइट सम मेमोरीज सो दैट वो कमांड आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर वो और अपना प्रिंटर का जो मदरबोर्ड है उसका कमांड लिस्ट क्या है और क्या क्या एक्शंस करते हैं वो पर्टिकुलर कमांड, और हम लोग उस UART के थ्रू एंटर कर सकते हैं। कोई भी ले लो, कोई भी डिवाइस आपके पास, एम्बेडेड सिस्टम वॉशिंग मशीन का कुछ है, उसको भी अगर मदरबोर्ड ओपन करके देखोगे आप, तो वहाँ पे भी आपका RX एंड TX फील्ड रहेगा जो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। डोरबेल्स हुआ, मशीन्स हुए, मतलब कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स हुए, कनेक्टिंग डिवाइसेस हुए, तो ये डिवाइसेस आप उठा के, या फिर कनेक्टेड व्हीकल्स में अगर आप देखते हो कोई जो आपके इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे आप लोग ये UART यूज़ करके आराम से वहाँ, मैं एक बता रहा हूँ, ऐसे आराम से आप उसके प्रोग्राम्स में मेमोरी कंपोनेंट्स चेंज कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो सेटिंग्स के नंबर्स और हेक्सा नंबर्स आप लोग वहाँ पे फीड कर सकते हो। बाय डूइंग दिस यू हैव टेस्टिंग कि आर दे अलाउिंग और नॉट अलाउिंग। इफ दे आर अलाउिंग दे आर वर्नेबल टू द पर्टिकुलर हार्डवेयर अटैक। वैसे ही फर्मवेयर का है, नेटवर्क का है, वायरलेस कम्युनिकेशन का है, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस का है, क्लाउड एंड APIs का है। ऐसे मल्टीपल वेज में हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। सर हम लोग कैसे चालू करेंगे? ऐसे सीधे क्वेश्चन कैसे ना, नहीं, तो हम लोग कैसे चालू करेंगे? हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 1 फॉर द पासवर्ड एंड एग्जाम्पल 2 फॉर वाईफाई सर्विसेज ऑन डिसेबलिंग द वाईफाई सर्विस ऑन IoT डिवाइसेस। अभी ध्यान देते हैं कि कैसे होगा। आई कैन नॉट राइट, सो आई विल हैव अ, ये सोल्यूशन है, यहाँ पे नीचे जो है ना सोल्यूशन है। अभी पासवर्ड क्रैकिंग, ये एक कोई भी IoT डिवाइसेस भी रहने दो या फिर नॉर्मल कंपोनेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस भी रहने दो, हैंडल डिवाइसेस रहने दो, उसके ऊपर ये अटैक हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे? देखते हैं हम लोग के password. Whenever you enter a password ABCD, you see that this password is encrypted using any of the hashing algorithm or encryption algorithm, कोई भी algorithm, mostly चलो hashing algorithm। मैं लेता हूँ SHF 512, दिस नॉट यूज एज सच क्योंकि उसमें ड्रॉबैक है, नॉट यूज इन IoT। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर ये हैशिंग एल्गोरिथम उसको लेता है, ही क्रिएट अ हैश फॉर दैट पर्टिकुलर कोड, तो वो पर्टिकुलर हैश जो जनरेट हुआ वो हैश हमारे डेटाबेस में सेव होगा। इतना तो क्लियर है। When tomorrow or next time when you come for authentication, you enter a password, again that password is converted into the SHA, whatever hash is generated get compared with the stored password. If it is same, you get access। इतना हमको समझ में आया? इधर तक समझ में आया? फाइन। So by using this technique, they try to have a access to our system। अब बोले कैसे? देखते हैं। आप अपना पासवर्ड जितना मुश्किल करोगे उतना ये एल्गोरिदम मुश्किल हो या टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जितना लेंथ कम रखोगे वो हम लोग उसके ऊपर आते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है। अब बोले से अटैक कैसे होगा? तो हम लोग करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक या फिर डिक्शनरी अटैक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स पासवर्ड अटैक या फिर डिक्शनरी अटैक। दो अटैक है जो हम लोग कर सकते हैं। अभी ब्रूट फोर्स अटैक में ट्राई ऑल पासवर्ड आता है और डिक्शनरी अटैक्स में हमारे पास एक लिस्ट क्रिएटर रहेगा। अब उससे कैसा लिस्ट रहता है? आई विल जस्ट शो यू द लिस्ट। I'm just opening a Kali Linux which have a inbuilt word list which you can use. Otherwise, you can also have the word list from the, एक सेकेंड, ओके सर चालू करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट, इसके अंदर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे CD slash USR share
वर्ड लिस्ट एलएस। अभी इतने सारे वर्ड लिस्ट है जो कि डिक्शनरीज है, ओके, उसमें से ये रॉक्यू एक सबसे बड़ा वर्ड लिस्ट है। आप लोग बड़ा WC okay, these are the number of word count the password available in the rockyou test। इतने सारे पासवर्ड अवेलेबल है, ओके, और वो 3 सेट्स में अवेलेबल है। तो इतने सारे वेरी डिफरेंट पासवर्ड हमारे पास है जो कि है। वैसे ही IoT का भी मिलता है, वेल नोन इंडियन पासवर्ड का भी लिस्ट मिलता है। 500 रुपीज़ 700 रुपीज़ में आप लोग को वर्ड लिस्ट मिल जाता है, ओके। और जैसे अपडेट करोगे उतने आपको लेटेस्ट वर्ड लिस्ट आपको मार्केट में मिल जाता है। देयर इज अ वेबसाइट हु गिव अवे द लिस्ट ऑफ द पासवर्ड। 1000 2000 3000 रुपये आपको वर्ड लिस्ट मिल जाता है अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप वाइज, अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस। विंडोज़ के बाद में आप बोलोगे कि हमको सिर्फ लिनक्स के बेस चाहिए, तो ऐसे लिस्ट ऐसे क्रिएशन करके भी आपको पासवर्ड की लिस्ट मिल जाता है। अभी फिर सर पासवर्ड क्रैक कैसे होता है? आपके पास तो वर्ड लिस्ट आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी आपका IoT डिवाइस है, अभी एक याद बताओ, यहाँ पे पासवर्ड क्रैक हुआ और हैश पासवर्ड क्या होता है आपके IoT डिवाइसेस में रहता है। आप बोलते सर हम लोग ने प्लेन टेक्स्ट तो रखा नहीं, हम लोग ने क्या रखा, हैश पासवर्ड रखा, और उसके ब्रैकेट में उसको बोला कि भाई साहब ये हैश कैसे जनरेट हुआ है, 512 से ये एल्गोरिथम रख के यूज जनरेट हुआ है। वो IoT डिवाइस है, पहले कैलकुलेट करके इसके अंदर रखा फर्स्ट टाइम जब आपने किया, और ब्रैकेट में क्या रखा, ये मेटा डेटा है जो बताता है कि दिस हैश इज बीन क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, और ये अपने IoT डिवाइसेस में आपने रख दिया। आप बोलेगे सर फिर ऐसे कैसे क्रैक करेंगे? चलेगा, अगर IoT डिवाइस मुझे एक्सेसिबल है ना, तो मैं क्या करूँगा, अभी IoT डिवाइसेस में से ये फेच करूँगा। आप लोग कोई भी IoT डिवाइसेस में उसका हैश कंटेंट फेच आउट कर सकते हो, विंडोज़ का भी कर सकते हो। तो कोई भी कंपोनेंट जो मेमोरी कंटेनर के अंदर इसको रखता है उसका हम लोग फेच कर सकते हैं। आफ्टर फेचिंग दैट, और अपने को क्या मिलेगा मेटा डेटा में, एल्गोरिथम कौन सा है वो भी मिलेगा। ये 2 एल्गोरिथम मिलने के बाद आप क्या करते हो, आप वो डिवाइस बाजू में रख देते हो, डिवाइस का काम हो गया। डिवाइस को क्लोन किया, उसमें से लोकेशन, हर एक डिवाइस का लोकेशन अलग अलग होता है। आप सिर्फ सर्च करो रास्पबेरी पाई स्टोरिंग द वाईफाई पासवर्ड इन विच फाइल, ऐसा सर्च करो, आपको लोकेशन का रास्पबेरी पाई स्टोरिंग द रूट पासवर्ड इन विच फाइल, आपको वो आ जाएगा। रास्पबेरी पाई स्टोरिंग द, उसके अंदर कोई फाइल है जिसको आपने एंक्रिप्ट किया है, द फाइल स्टोरिंग द एक्सट्रैक्ट द फाइल मेटा डेटा इंफॉर्मेशन, तो वो आपको बाहर निकल के आ जाएगा। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट। तो अगर सपोज ये पर्टिकुलर पासवर्ड स्टोर है हैश में और उसका एल्गोरिथम हमको पता है, हम लोग उसको कॉपी करके ले लेंगे एंड वी कम बैक टू आवर मशीन काली लिनक्स, और काली लिनक्स को हम लोग को क्या देना है, 2 चीज़ें देनी है। काली लिनक्स को अपने को क्या देना है, 2 चीज़ें देना है, ये हैश एल्गोरिथम की देना है और एल्गोरिथम देना है। तो काली लिनक्स क्या करेगा, अगर डिक्शनरी अटैक है, हमारा डिक्शनरी अटैक, डिक्शनरी कौन सा था, .txt ये था, वो क्या करेगा, रॉक्यू में से फर्स्ट पासवर्ड निकालेगा बाहर, ओके, रॉक्यू में से फर्स्ट पासवर्ड बाहर निकालेगा। आफ्टर गेटिंग दैट पासवर्ड ही विल यूज दैट पास दैट पासवर्ड टू SHA 512, SHA 512 को पास करेगा। SHA 512 से कोई तो अपने को क्या मिलेगा, SHA 512 से अपने को क्या मिलेगा, एक कोई तो हैश मिलेगा, पकड़ लो ये ऐसा हैश मिला। नाउ ही विल कंपेयर दिस हैश विद, he will compare this hash with this particular value, if match ठीक है, नहीं मैच छोड़ दो। the process repeats, फिर नेक्स्ट पासवर्ड नहीं मैच हुआ, नेक्स्ट पासवर्ड नहीं मैच हुआ, थर्ड पासवर्ड नहीं मैच हुआ, फोर्थ पासवर्ड। अगर आप ये सिस्टम पे करते हो तो स्पीड कितना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 90,000 पासवर्ड्स पर सेकेंड, उतने वो पास करते हैं थ्रू द एल्गोरिथम्स। अभी आप सोचो, आपका जो डिवाइस है IoT डिवाइसेस है, उसमें अगर आप पासवर्ड बहुत इजी रखते हो और कम लेंथ का रखते हो तो वो जल्दी एक्सट्रैक्ट हो सकता है। या फिर वेल नोन रखा है, वेल नोन मतलब जो कि नोइंग है, डिक्शनरी अटैक मतलब क्या, वेल नोन पासवर्ड। आप बोलेगे सर वेल नोन पासवर्ड में मैं नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई करोगे, मतलब ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द पासवर्ड, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द पासवर्ड स्टार्टिंग विद 000 से लेके लास्ट में आपका
जो भी आपका जेड जेड में आपका 4 डिजिट का रहेगा तो जेड 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 तक आएगा। इसमें सब न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर सब आ गए, एग्जाम्पल कैप्स लॉक है, तो उसका पासवर्ड लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, उसके लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, भले उसका स्पीड अच्छा है या फिर इससे भी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर आपने रख दिया तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप बोलेगे मतलब सर कोई भी पासवर्ड क्रैक हो सकता है? यस, कोई भी पासवर्ड आप ले लो जिसके अंदर साल्ट वैल्यू एडिशन नहीं होता है, वो पासवर्ड क्रैक हो सकता है। अभी कोई कोई IoT डिवाइसेस में उन्होंने क्या किया, दे हैव एडेड अ साल्ट वैल्यू। तो प्रॉब्लम क्या बना, वो साल्ट वैल्यू भी एज अ मेटा डेटा उस इसके साथ रख दिया, तो हम लोग एज अटैकर क्या देखेगा, एल्गोरिथम भी लेगा और वो साल्ट वैल्यू भी लेगा और फिर उसके अंदर ऐड करके हैश की कंपेयर करेगा। वो भी एक ऑप्शन है पर वो इतना नहीं है, पर मुश्किल है थोड़ा बहुत। बट दिस इज अ वे, आप मेरे को क्या समझाना है आपको, हाउ द पासवर्ड क्रैकिंग ऑकर्स। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सारे पासवर्ड क्रैकिंग बोलते हैं, मैं पीडीएफ का है, एक्सेल का, वर्ड का, विंडोज का, विंडोज के कोई भी मशीन का हम लोग पासवर्ड 10 से 15 मिनट के अंदर क्रैक कर सकते हैं। विंडोज का तो कर सकते हैं क्योंकि विंडोज के फाइल में जाके हम लोग करते हैं। फाइन। तो कैसे होता है एक्चुअली, हर एक पासवर्ड जो भी हैंडल डिवाइस है, अभी ये डिवाइस सेंट्रलाइज नहीं है ना, देखो क्या होता है, वो डिवाइस अपने पास, अभी वो डिवाइस को आपको करना है, आप जाते हो डिवाइस में अंदर कोई कीवर्ड एंटर करते हो, जैसे ही आप कोई कीवर्ड एंटर करते हो इट विल वेरीफाई इट इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस itself. If you are gaining an access to that memory component by UART or by hardware interface, आप बोलेगे सर नहीं हम लोग क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, फाइन, क्लाउड पे स्टोर करें तो वो क्या करेगा, स्निफिंग करेगा, स्निफिंग करके आपने क्या भेजा वो कोशिश करेगा देखने की, तो उसमें से उसका हैश मिलेगा, एल्गोरिथम नहीं मिलेगा। देन ही ट्राई विद द मल्टीपल एल्गोरिथम, उसको एयर क्रैक बोलते हैं। वाईफाई पासवर्ड वैसे निकलता है, आपको पता है वाईफाई में कौन सा एल्गोरिथम यूज कर, WPA2 यूज कर रहा है, तो WPA2 हैकर को भी पता है, तो वो क्या करता है, जो मैं वो बताता हूँ वाईफाई में जब भी आएंगे ना तभी बताता हूँ, इसके बाद में वाईफाई हैकिंग का भी, वाईफाई हैक कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि whenever I am designing a password और whenever I am having, अब इसे प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपने बहुत शॉर्ट में बहुत फटाफट आपने सिर्फ इतना बताया कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो अटैक वर्क कैसे होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन हाउ द पासवर्ड आर क्रैक। बट हाउ टू प्रोटेक्ट दिस, अभी आपको भी पता है, फर्स्ट ब्रूट फोर्स अटैक नहीं होने के लिए या फिर ज़्यादा टाइम लगने के लिए यू शुड इंश्योर दैट योर पासवर्ड शुड हैव, देखो टाइमलाइन दिया है विद स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग पावर, इतना टाइम लगता है। when your password has a multiple combinations and multiple alphanumerical characters, it will take more time to crack. हम लोगों ने क्या किया, वर्नेबिलिटी पता चला, अरे पासवर्ड यहाँ से ऐसे हैश में स्टोर होता है, तो अरे एक काम कर, पासवर्ड का कॉम्बिनेशन, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट लगा और लेंदी रख। सेकेंड, it should not be a well known password, it should not be a well known password. Clear? Okay, any question you can just put it over here. I was just checking कि आपका कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, आपका कोई फाइन। तो अभी जब भी हम लोग को ध्यान में रखना, वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव अ लेंदी पासवर्ड एंड ऑल्सो नॉट द वेल नोन डिक्शनरी अटैक पासवर्ड। ये करके आप लोग अब सिंपल मैकेनिज्म है। तो जब भी आप ऑडिट करते हैं ना, अभी सिंपल है, नाबार्ड का एक ऑडिट किया हमने लास्ट वीक, इसमें हम लोग उन लोगों ने ऐसे ही पासवर्ड रखे थे, उनकी छोटी छोटी हैंडल डिवाइसेस जो है कंपनी के अंदर, उसमें वेल नोन पासवर्ड या फिर कंपनी का नाम ही यूज़ किया है, तो डिक्शनरी आराम से क्रिएट कर सकते हैं ना। तो वैसे सिनेरियो में यू हैव टू ऑडिट एंड से दैट कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या क्या, यू हैव ऑडिटिंग करके आपको क्या बताना, all the IoT devices whichever you are taking into the consideration, ensure that you are having a password of this length where the password is not from the well-known list, not from the company list, and the generation of the password should be unique. अभी सिंपल है, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा पासवर्ड है नोकिया 6600, so what will I, while writing a password, it is easy for remembering 6600, but while writing I have written my password in this manner.
सो इट विल बी डिफिकल्ट, नॉट इन अ डिक्शनरी अटैक में मिलेगा, ना ही ब्रूट फोर्स के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा. वेयर आई कैन ऑल मेक इट मोर डिफिकल्ट बाय हैविंग दिस replacement. So as an auditor, what as a penetration tester, what we have to notify them, we have to give. देखो जब भी आप चार्ट बनाते हो penetration testing का audit करके, penetration testing करके, you have to say that these are the drawbacks in your system. Second, these are the possible ways the attack can occur, and third आपको लिखना रहता है what should you do. So you have to ensure that you give them a good suggestion. Second suggestion जो आप कर सकते हैं वो है adding a salt value, which is again require some storage component to store the salt value. इसमें क्या हुआ, आपका पासवर्ड है, as soon as you give a password, it will not be directly given to the hashing algorithm. It will be added with some salt value, and then a hash will be calculated, and that hash is stored. So whenever you enter the next time a password, the respective username and the password salt value will be extracted, and that salt value will be added to a enter password, and then the hashing algorithm will be generated, and we have a. So this mechanism you can ask students, or whenever you are doing a project or you are actually, you can have this particular additional component added to your. Yeah. अब वो salt value generation जो है, salt value generation जो है, you have to ensure that the salt value generation will be in such a way that the username और password का कॉम्बिनेशन लेके साल्ट वैल्यू जनरेट होता है. एल्गोरिथम हार्डली 4 लाख का पाइथन कोड लिखना पड़ेगा आपको वो कोड जनरेट करने के लिए. यूज दैट एंड यू कैन इजीली हैव अ पासवर्ड प्रोटेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा वर्नेबिलिटी में सबसे पहला वर्नेबिलिटी IoT डिवाइसेस का, वो आप सिंपल ऐसे 2 तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हो. देखो उसके मेजर तरीके भी है, आई एम नॉट गोइंग इन डीप बिकॉज फर्स्ट ये सेकंड सेशन है आपका, जब भी, और वो भी लिमिटेड टाइम का, तो आपको सब डायरेक्टली करने के लिए दिखाएंगे तो वो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड ओनली 1 अटैक विल बी पॉसिबल एट अ टाइम. तो इसके लिए आई एम जस्ट गिविंग कि आप लोगों को क्या करना है, अगर मेरे सिस्टम में मेरे स्टूडेंट्स को या फिर हमें ये सब हमको प्रोटेक्ट करना है, तो इट इज अ सिंपलेस्ट टेक्निक दैट यू कैन फॉलो ऑन. क्लियर. अभी सेकेंड है कि हमारा वाईफाई अटैक कैसे होता है ऑन द वाईफाई IoT डिवाइसेस में, और दूसरा उसको सर्विसेज डिसेबल कैसे होता है. अगर आपका वाईफाई से नोड MCU चल रहा है, हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं. सेकंड, हम लोग का कैमरा चल रहा है, उसको हम लोग बंद कैसे करते हैं. तो वो आप लोग देखते हैं ना कि वो क्या जैमिंग सेशन क्रिएट करता है, वो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. दिस फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट फॉर द फर्स्ट वन, यू कैन जस्ट पुट इट इन योर Q&A सेशन. अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें कोई डाउट है या फिर हमें कोई क्वेश्चन है, तो मैं आगे बढ़ूं, हाँ ना, जो भी क्वेश्चन है. बोलिए. आपको सिर्फ यस और नो टाइप करना है, नहीं समझ में आया रिपीट करो करके बोलना है, मैं रिपीट कर दूंगा. चलेगा. ओके, नो आंसर्स. चलो question is the data transfer from sensor to the Raspberry Pi is encrypted? No. What tools for the brute force attack we should use? There are multiple tools. You can write your own as well. और अगर आपको tools चाहिए तो हमारे Kali Linux में बहुत सारे tools है. उसमें से the well known is Hydra. This is a tool which is used for. अभी आपको कैसे है कि एग्जाम्पल देता हूँ. आपका अभी लॉगिन स्क्रीन दिखता है ना, कहीं पे भी आपको लॉगिन स्क्रीन है जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है. आप वो लॉगिन स्क्रीन इसको दे देंगे, हाइड्रा को फाइल दे देंगे पासवर्ड का, यूजर नेम का, पासवर्ड का फाइल दे देंगे, वो अपने आप वो सारे पासवर्ड उसके ऊपर ट्राई करते रहेगा. दिस इज वन ऑफ द टूल फॉर डूइंग हाइड्रा. हाइड्रा इज वन ऑफ द टूल. आप सिर्फ बोलो हाइड्रा, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स भी नीचे दिया जाएगा. तो जो हाइड्रा करके भी आप लोग क्या कर सकते हो,
वेबसाइट रिलेटेड है, एप्लीकेशन रिलेटेड है, आपको सिर्फ उसका पोर्ट नंबर देना है, पासवर्ड लिस्ट देना है, यूजर नेम देना, वो सारे पासवर्ड उसके ऊपर वो ट्राई करते रहते हैं। ओके, दैट इज अ टूल फॉर डूइंग अ ब्रूट फोर्स अटैक। आपको लिस्ट देना पड़ेगा, पर वो जो लिस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा। फुली फाइन। और कोई क्वेश्चन? कैन वी यूज हाइड्रा फॉर विंडोज पासवर्ड क्रैकिंग? सर नहीं, विंडोज पासवर्ड क्रैकिंग करने के लिए हमको हाइड्रा यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो मैं फटाक से बता देता हूँ विंडोज पासवर्ड क्रैक कैसे होता है। कोई भी विंडोज का कोई भी मशीन, आपको क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट देखो क्या लगेगा। यू रिक्वायर अ काली लिनक्स और एनी लिनक्स, I prefer Kali Linux on the USB bootable drive, USB bootable drive। मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर करूंगा जहाँ पे आपको काली लिनक्स भी आ जाएगा और बूटेबल ड्राइव कैसा है वो भी आ जाएगा। आपको एक काली लिनक्स चाहिए बूटेबल ड्राइव में, आपको उसको कनेक्ट करना है कोई भी विंडोज मशीन को जिसका आपको पासवर्ड क्रैक करना है, कोई भी विंडोज 10 भी चलेगा। ओके, विंडोज मशीन में जिसका आपको पासवर्ड है कनेक्ट करने का, एंड यू हैव टू गो टू द बायोस एंड select boot from pen drive option, boot from pen drive option। जैसे आप सिलेक्ट करते हो boot from pen drive option, आपका बूट कहाँ से होगा, काली लिनक्स बूट हो जाएगा। काली लिनक्स बूट होने के बाद यू हैव टू जस्ट कमांड पर ओपन टर्मिनल करना है। ओपन टर्मिनल, देयर इज अ कमांड कॉल्ड chntpd। आपको ये सिर्फ रन करना है, chnd ये कमांड रन करना। ये कमांड क्या करता है, अब बोले से ये कमांड कहाँ पे जाके रन करना है, अभी ओपन टर्मिनल किया ना, तो अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है, डू यू नो वेयर द विंडोज पासवर्ड इज स्टोर्ड। विंडोज अभी अपने क्या हुआ, आपके सिनेरियो देखो, विंडो को पेन ड्राइव लगा दिया और बूट फ्रॉम पेन ड्राइव किया, मतलब क्या हुआ, विंडोज तो हार्ड डिस्क में है, आपके हार्ड ड्राइव में विंडोज है। ओके, आपके हार्ड ड्राइव में विंडोज है और अभी बूट आप कहाँ से कर रहे हो, यूएसबी से कर रहे हो। तो अभी हार्ड ड्राइव आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, यूएसबी से एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू अ mount/dev/SDA1। मैं आपको इसके स्टेप्स भी देता हूँ, मैं कैसे लिखे वो स्टेप्स बता देता। SDA1 माउंट कर लिया तो इससे क्या होता है, आपका जो हार्ड ड्राइव है मैं अभी काली लिनक्स से एक्सेस कर सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए आपका पासवर्ड स्टोर होता है SAM फाइल में, एंड SAM फाइल इज इन system32, sysconfig system32 sysconfig के अंदर, जिसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है SAM फाइल, जिसके सारे विंडोज पासवर्ड उसके अंदर स्टोर रहते हैं, विंडोज पासवर्ड इसके अंदर स्टोर रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उस ड्राइव में जाना है, SAM फाइल के तक जाना है, उसके बाद पासवर्ड कमांड लिखना है chntpd SAM ना करना। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर के सारे यूजर्स SAM फाइल को ये रीड कर सकता है, आपको लेके दे देगा। आपको सिलेक्ट करना है जो यूजर आपको डिलीट करना है या फिर जिसका पासवर्ड आपको चेंज करना है। chntpd u, अभी सपोज यूजर है एडमिन और SAM, आगे SAM कैपिटल में रहता है, SAM एंटर। तो वो क्या करेगा, एडमिन का ओपन करेगा, आपको वहां पे ऑप्शन आएगा क्लियर पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। ओपन नहीं कर सकते क्योंकि साइड वैल्यू ऐड रहता है, तो विंडोज का पासवर्ड आपको मिलेगा नहीं, आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। तो आपको क्लियर करना है, चेंज करना है, कर दो, रिस्टार्ट करो, आपके मशीन में आपने जो अभी पासवर्ड सेट किया उससे विंडोज लॉगिन होगा। और ये करने के लिए हार्डली 10 मिनट्स लगता है। मैंने सिर्फ सेटअप रेडी नहीं किया, और वैसे यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई विल शो यू। मैं आपको एक फाइल शेयर करूंगा जिसमें ये स्टेप्स लिखे रहेंगे। देखो इतने स्टेप्स आपको करने हैं बस। आपका पासवर्ड, विंडोज का पासवर्ड आराम से टर्मिनल ओपन होते ही LSBL के क्या देता है, आपके हार्ड ड्राइव का नाम देता है। वो हार्ड ड्राइव का नाम यहाँ पे लिखना है mount/dev। मैंने MNT पे माउंट किया था, आपको करना है तो ओपन माउंट करो, जहाँ पे आपका ड्राइव है वहाँ पे माउंट हो जाएगा। ये लोकेशन है आपका पासवर्ड जहाँ पे रहता है, system32 कॉन्फिग।
और उसमें अंदर जाके chntpw और आपको क्या करना है, फाइल में जाके कमांड हिट कर देना। आप कोई भी यूजर का पासवर्ड विद इन 5-10 मिनट्स निकाल सकते हैं। फाइन, होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Sir, I have a system whose password is set by the, you can change it. You can change it easily. 10 मिनट सिर्फ। कैन वी सेट अ फोल्डर, नहीं सो फोल्डर नहीं, chpntd स्क्रिप्ट ऐसा लिखा गया है इन सच अ वे दैट इट विल बी एबल टू रीड द सैम फाइल। सैम फाइल का पार्सिंग का कोड ch, आपको समझना है, कभी ना कमांड दे के रट्टा नहीं मारने का। chpnw में होगा क्या, it is nothing but he has a capability to read the SAM file. When I say erase, he remove that particular field from the username. Username उसके राइट्स और उसके आगे पासवर्ड हैश में रखा रहता है। आप क्लियर कर दे तो वहां से निकाल देता है, और जब भी विंडोज से लॉग इन कर दे तो आपको पासवर्ड पूछता ही नहीं है, क्योंकि आपने वहां पे क्लियर कर दिया। फाइन, ओके, चलो फाइन, क्लियर। चलो आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर हम लोग अपना खाते जाइए, वाईफाई क्रैक कैसे करते हैं मोस्टली, और वाईफाई डिसेबल कैसे करते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकते, पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं एक काम करूंगा, आई विल ड्रॉ दिस थिंग एंड सेंड इट टू अगेन आफ्टर द सेशन टू द ऑर्गेनाइजर, दे विल शेयर विथ यू, बिकॉज मैं ड्रॉ करके बताना चाहता था पर अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आई विल ट्राई मैक्सिमम कि आपको समझ में आएगा। फिर वाईफाई अटैक होता कैसे वो देखते हैं। नहीं तो बहुत वाईफाई अटैक इज वन ऑफ द मोस्ट, कि सबको लगता है कि बहुत बड़ा अटैक है, और ऐसा कुछ नहीं है। वापिस ध्यान रखो, एवरी अटैक, हर एक अटैक इज लाइक अ मैजिक ट्रिक। आपको वो ट्रिक पता चल गया, वो आपको वो मैजिक का कोई मजा नहीं आता। जब तक आपको ट्रिक पता नहीं रहती तब तक आपको लगता है बहुत सही हो रहा है कुछ। तो अच्छा, वो ट्रिक क्या है वो ध्यान देते हैं। अभी वाईफाई में क्या होता है, देयर इज अ एक्सेस पॉइंट, ओके, देयर इज अ एक्सेस पॉइंट who is giving a services, उस एक्सेस पॉइंट को मल्टीपल नोड कनेक्टेड रहेंगे, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे। आई से दैट these are the access point which are connected to the particular एक्सेस पॉइंट। ये 4 लोग है ना एक्सेस पॉइंट को, और बीच में आ जाता है हमारा अटैकर, हमारा आ जाता है अटैकर, जिसका काम क्या है, इस एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड निकालने के लिए। अब एक ध्यान रखो, ये एक्सेस पॉइंट इनके साथ क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि ए बी सी और डी इनको एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड पता है। अभी आपको सबको पता है एक्सेस पॉइंट से पासवर्ड कैसे इंक्रिप्टेड है, WPA2 से इंक्रिप्टेड है, विच इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर डिक्रिप्टिंग। डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिक्रिप्शन। तो वो लोग भी करते तो एंक्रिप्ट करके कंपैरिजन करते हैं। हमेशा याद रखो, पहला था कि जब भी हम लोग पासवर्ड एंक्रिप्ट करते थे, दूसरे पे जाके डिक्रिप्ट करते और फिर कंपेयर करते थे, ऐसा होता ही नहीं है। पासवर्ड आर हैश एंड द हैशिंग वैल्यूज आर कंपेयर्ड, और पासवर्ड आर एंक्रिप्टेड थ्रू सम एल्गोरिथम एंड दैट एंक्रिप्टेड वैल्यू इज कंपेयर्ड, नॉट द प्लेन टेक्स्ट इज कंपेयर्ड एनीवेयर। अभी सपोज ये एल्गोरिथम के अंदर पासवर्ड है, एग्जांपल पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल, और ये WPA से हैश है, ओके। ये यहाँ पे जब भी आप कुछ एंटर करते हो ना 1 2 3 4 5 6 कनेक्ट होने के लिए, यहाँ पे WPA एल्गोरिथम क्या करता है, उसको एंक्रिप्ट करता है और उसको बेचता है एक्सेस पॉइंट के अंदर, उसको बोलते हैं WPA हैंडशेक पैकेट, उसको बोलते हैं WPA हैंडशेक पैकेट। ये पैकेट के थ्रू एक्सेस पॉइंट को बेचता है। एक्सेस पॉइंट वो WPA हैंडशेक पैकेट को लेता है जिसके अंदर एंक्रिप्टेड पासवर्ड है यूजिंग WPA2। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, अपने पासवर्ड का वापस WPA करता है और इसके साथ क्या करता है, कंपेयर कर रहा है। अगर दोनों सेम है तो इस बाइसेप को वो इंटरफेस पे कम्युनिकेशन करना अलाउ कर देता है, अदरवाइज नहीं करता। फाइन, अभी ये फिर क्रैक कैसे होता है, क्रैक तो होना नहीं चाहिए क्योंकि एंक्रिप्टेड जा रहा है इंटरफेस पे, तो क्रैक कैसे हो रहा है, और दोनों साइड पे एंक्रिप्शन हो रहा है, तो कैसे क्रैक हो रहा है, तो ध्यान देते हैं। अभी हम लोग सिनेरियो कैसे, अटैकर आ जाता है इसके एक्सेस पॉइंट के नेटवर्क में,
अटैकर है ना खुद को एक मोड में ऑन करता है, उसको बोलते हैं मॉनिटर मोड, मॉन मोड, इसको बोलते हैं मॉनिटर मोड, इसको बोलते हैं मॉनिटर मोड। अभी आप समझो ना, आपका मोबाइल ले लो हाथ में, उसका वाईफाई ऑन करो, कनेक्ट मत करो किसी को, ऑन करो, आपको आजू बाजू के सारे एक्सेस पॉइंट दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपके फोन में जो वाईफाई अडेप्टर है वो मॉनिटर मोड में चला गया, and in monitor mode that interface can scan all the nearby signals, जितने भी नियर सिग्नल्स है वो सारे वो कैप्चर कर सकता है या फिर समझ सकता है, सुन सकता है। एंक्रिप्टेड रहेगा सब, पर वो एटलीस्ट वो सिग्नल सुन सकता है कि दिस इज एक्सेस पॉइंट प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, और उसका मैक एड्रेस उसको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक्सेस पॉइंट एडवर्टाइज करता रहता है ना कि आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, वो एडवर्टाइज थ्रू अ मैक एड्रेस। क्योंकि आपको पता है ना वाईफाई कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन मैक एड्रेस पे कम्युनिकेट होता है, क्योंकि वी आर इन अ सिंगल इंटरफेस, वी आर इन अ सिंगल इंटरफेस, तो मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन होता है। तो अटैकर मॉनिटरिंग मोड में आ जाता है और सब एक्सेस पॉइंट का सुनता रहता है, जितने भी नियर बाय एक्सेस पॉइंट है। फिर वो डिसाइड करता है किस एक्सेस पॉइंट के ऊपर अटैक करना है। तो मैं बोलता हूँ एक्सेस पॉइंट 1 के ऊपर अटैक करना है। फिर वो क्या करता है, सबको बाहर निकाल देता है और वो थोड़ा नजदीक जाता है, उसका नजदीक जाता है मतलब ही नाउ ओनली स्नीफ, he now only sniff he now only sniff the access point 1 सिग्नल्स, एक्सेस पॉइंट 1 सिग्नल। कैसे? आप सब लोग तो एक ही प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं ना, 8011.a को भी पान कर रहे हैं, पर उसमें चैनल सबके अलग अलग है ना, तो वो चैनल को पकड़ता है और उस चैनल के अंदर आपको पता है ना, चैनल frequency are divided into multiple channels so that the communication can occur on the same frequency by the multiple devices। तो अपना ये बंदा क्या करता है, अटैकर क्या करता है, मॉनिटर में आता है, स्निफिंग शुरू करता है, सारे एक्सेस पॉइंट में से इसको सिलेक्ट करता है, चैनल पे वो स्निफिंग करते रहता है, कान लगा के बैठा रहता है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं बैठा हूँ और मेरे सामने 2 चाइनीज लोग बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है, तो आई एम डूइंग अ स्निफिंग, आई एम डूइंग अ, क्या बात कर रहे भगवान जाने, पर मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे भी अटैकर को क्या हो रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, पर ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर कम्युनिकेटिंग बिकॉज इट इज एंक्रिप्टेड, बिकॉज इट इज एंक्रिप्टेड। तो आप बोले कि सर फायदा क्या है, एंक्रिप्टेड हो रहा है, अपने को तो क्रैक करना है। तो ये अटैकर सुनने के बाद है ना, देखता है कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा बात कर रहा है, कौन सा डिवाइस किससे ज्यादा कनेक्टेड है, तो उसके बाद एक एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है, 4-5 लोग बात कर रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा बात कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है। फिर वो क्या करता है मालूम है, एक डी ऑथ पैकेट जनरेट करता है। उसको पता है, आपको पता है, आप वाईफाई कनेक्टेड है आपके मोबाइल में और लाइट चली जाती है और फटक से लाइट आ जाती है, तो वाईफाई ऑन हो जाता है और आपका मोबाइल नोड गेट कनेक्टेड टू अ एक्सेस पॉइंट। कैसे? क्योंकि व्हेन लाइट गोज ऑन, लाइट वाज वेंट, यू ट्राई टू सेंड अ डेटा, बट देयर वाज अ डी ऑथ मतलब देयर वाज अ डिस्कनेक्शन, एंड देन व्हेन यू अगेन ट्राई टू सेंड अ डेटा, तो वो बोलता है कि प्रूव योरसेल्फ दैट यू हैव अ पासवर्ड। तो वो क्या बोलता है कि भाई साहब तेरा, तो आपका आपका मोबाइल क्या करता है, वो पासवर्ड जो स्टोर रहता है ना आपके मोबाइल के अंदर, सेव पासवर्ड के अंदर, वो वापस लेता है और वापस एक्सेस पॉइंट को भेजता है, प्रूव करता है और फिर कनेक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑटो कनेक्ट। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन जो जो एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है ना, वो बिकॉज ऑफ दीज कंसेप्ट। जब भी डी ऑथ होता है, अगर आपके पास उस SSID का स्टोर्ड पासवर्ड है, तो आपका मशीन आपको पूछता नहीं है कि भाई साहब पासवर्ड फिर से एंटर कर, वो अपने आप ही पासवर्ड भेज देता है। तो अटैकर उस टेक्निक का एडवांटेज लेता है। अटैकर क्या करता है, ही सेंड अ डी ऑथ पैकेट टू अ नोड ए, नोड ए को भेजता है। तो नोड ए को डी ऑथ पैकेट में मैक एड्रेस किसका लिखता है, ध्यान रखो, अभी मैक एड्रेस किसका लिखता है, एक्सेस पॉइंट 1 का लिखता है। क्यों, कहाँ से मिला उसको मैक एड्रेस, स्निफिंग तो कर रहा था इतने टाइम से, स्निफिंग तो कर रहा था इतने टाइम से, तो मैक एड्रेस मिल गया। ही जनरेटेड अ पैकेट कॉल्ड एज डी ऑथ पैकेट which has a MAC address of access point 1 and send that packet to the A। तो A को लगता है कि एक्सेस पॉइंट में मुझे डी ऑथ भेजा, तो A क्या करेगा, वापस अपने यहाँ पे स्टोर्ड पासवर्ड को WPA से एंक्रिप्ट करेगा और एक WPA हैंडशेक पैकेट को
एक्सेस पॉइंट को भेज देगा, राइट। अभी भी अपना हैकर काली लिनक्स क्या कर रहा है, स्निफ कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, स्निफ कर रहा है। जैसे ही ए पैकेट WPA हैंडशेक पैकेट एक्सेस पॉइंट को भेज देता है, वो जाने देता है, और उसका एक जेरोक्स कॉपी निकाल के अपने पास लिखता है, उसको बोलते हैं WPA हैंडशेक कैप्चरिंग द WPA हैंडशेक, WPA हैंडशेक कैप्चर इसको बोलते हैं। तो वो जो गया उसके पास, फिर वापस एक्सेस में बोलता है, उसको लगा रहेगा कि वो डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ रहेगा, वो वेरीफाई होता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये अपना काम चालू, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं। अभी मेरे को ये मिल गया ना WPA हैंडशेक, मैं घर पे आता हूँ, अभी मुझे पता है देयर इज अ पासवर्ड इनसाइड दिस, इसके अंदर पासवर्ड है विच इज encrypted using WPA2 algorithm, which is encrypted using WPA2 algorithm। अभी जो हम लोग ने पासवर्ड का कंसेप्ट पढ़ा वही हम लोग फॉलो करते हैं। इसके अंदर WPA स्टोर से करके एक पासवर्ड मिला है, स्टोर है, ये पासवर्ड है, सपोज ये पासवर्ड स्टोर है WPA हैंडशेक के अंदर, पर अपने को तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि WPA डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। भले डिक्रिप्ट किसको करना है, अपन अपना उल्टा कंसेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लोग अपना डिक्शनरी अटैक लेके आएंगे, रॉक्यू को लेके आएंगे, उसमें से पहला पासवर्ड बाहर निकालेंगे, पहले पासवर्ड को कौन से एल्गोरिथम से पास करेंगे, अभी WPA2, अगर उसके पास एल्गोरिथम हमें भी मिलता है ना, WPA2 से पास करेंगे, और जो पासवर्ड जनरेट होता है, जो पासवर्ड जनरेट है वो किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो WPA हैंडशेक है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ऐसा चलते जाएगा जब तक आपको पासवर्ड नहीं मिलता। अगर इसने वेल नोन पासवर्ड यूज किया है, या फिर सिर्फ नंबर है, या फिर सिर्फ टेक्स्ट है, तो उसका पासवर्ड आपको एक ना एक इटरेशन पे मिल ही जाता है। व्हेन दिस टू गेट कंपेयर्ड, इफ दिस टू गेट कंपेयर्ड, अपने को क्या देखना है, रॉक्यू के इंडेक्स में कौन सा, ये इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा टेक्स्ट है, एंड दैट इज नथिंग बट द पासवर्ड फॉर एक्सेसिंग द एक्सेस पॉइंट। दिस इज हाउ द एक्सेस वाईफाई हैकिंग होता है। मैंने जितना इजीली एक्सप्लेन किया ना, सच में उतना इजीली होता है। तो आपका जितना पासवर्ड मुश्किल रहेगा उतना मुश्किल रहेगा, डिक्शनरी में नहीं रहेगा तो नहीं होगा अटैक, नहीं होगा, फिर ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स से हो सकता है क्या, बहुत टाइम जाएगा। अगर आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है तो इट विल टेक मोर टाइम। बहुत लोगों के पास, अभी जितने लोग वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं ना, उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। आई जस्ट कम बैक, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, देन आई विल टेक अप क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि हाँ, तो अभी आप बोलोगे सर कैसे प्रोटेक्ट करना है, मतलब ये तो पासवर्ड तो क्रैक हो सकता है, हाँ हो सकता है, जितना इजी तरीके से आपने बताया उतनी इजी तरीके से, यस इतनी इजी तरीके से। आपको वीडियो मिलेगा टू डू दिस, ये अटैक कैसे होता है, PDF मिलेगा, क्योंकि कैसे अभी कर ही नहीं सकता, मैं वाईफाई अटैक करने जाऊंगा, मेरे को मॉनिटरिंग मोड में डालना पड़ेगा, जैसे मॉनिटरिंग मोड में जाता है सारे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस आर द कंस्ट्रेंट व्हाइल डूइंग इट ऑनलाइन, वी कैन नॉट डू सम अटैक्स, शो दम सो दैट पर्टिकुलर अटैक। तो इजीली हो जाता है, हार्डली 20 to 25 मिनट लगता है टू कंप्लीट अटैक, मतलब अगर पासवर्ड भी बड़ा रहेगा तो। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे है जितने लोग, किसी के पास MTNL का राउटर है, MTNL का राउटर है उनके पास, अगर है तो मैं उनका पासवर्ड बताता हूँ। उनका पासवर्ड है उनके फैमिली का, उसमें फैमिली में जितने भी नंबर ऑफ पीपल रहेंगे उनका मोबाइल नंबर उसका पासवर्ड है 90%, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितने भी लोग अगर वेबिनार में बैठे हैं जिनके पास MTNL का राउटर है, उनका राउटर का पासवर्ड उन्हें चेंज नहीं किया रहेगा, 90% सबका रहेगा, ऐसा नहीं है। दे विल बी हैविंग अ मोबाइल नंबर एज द पासवर्ड ऑफ देयर राउटर। TP लिंक का जितना है तो वो लोग ने चेंज नहीं किया रहेगा, तो इट विल बी अ 8 डिजिट नंबर्स, कोई भी नंबर रहेगा, 8 डिजिट नंबर रहेगा, क्योंकि याद रहने के लिए इजी रहता है। TP लिंक या फिर D लिंक या फिर कोई भी राउटर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर चेंज किया रहेगा तो इट इज। तो आप जितना पासवर्ड अपने एक्सेस पॉइंट का डिफिकल्ट रखोगे, उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग WPA हैंडशेक निकाल सकते हैं कि सबको मिलेगा WPA। ओनली द WPA हैंडशेक से अपना
पासवर्ड निकालने के लिए मुश्किल आना चाहिए, क्योंकि दैट शुड नॉट बी इन अ वेल नोन अटैक एंड ऑल्सो इट शुड नॉट बी इन अ so long and with a alphanumerical, so it should take a longer time to crack the password. तो इतना ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपका सर क्वेश्चन था, आपने कुछ अलग बोला, डिसेबलिंग द वाईफाई सर्विसेज बोला था। आपको कोई IoT डिवाइसेस का वाईफाई सर्विस ही डिसेबल कर देना है। मुझे समझ आपके यही एग्जांपल में ये 4 IoT डिवाइसेस है जो ये एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है। मुझे यहाँ पे इंटेंशन नहीं है पासवर्ड कैप्चर करने का, तो मुझे क्या करना है, ये चारों को कनेक्ट ही होने नहीं देना है। किसको? इस डिवाइस को। तो क्या करें, मुझे कनेक्ट ही नहीं होने देना है इसको। तो आपको है ना सिर्फ और सिर्फ ये जो डॉट पैकेट भेजा ना आपने, इसको आपको इन्फिनिटी में इनफाइनाइट टाइम रन कर देना है। ये जो आपने डॉट पैकेट भेजा ना फ्रॉम एक्सेस पॉइंट 1 to A, वो इनफाइनाइट टाइम भेजना है। इससे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम भेजने से क्या होगा, इससे कि ए जब भी कुछ कनेक्ट करने जाएगा डीऑथ उसको आ गया, वो वापस कनेक्ट करने जाएगा डीऑथ उसको आ गया, और कंटिन्यूसली इसको डीऑथ आते जाएगा ना, तो वो कभी कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा, वो हमेशा पासवर्ड भेजने के तरीके में ही रहेगा। एंड दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ दैट इज हाउ यू कैन डिसेबल द। तो आपका समझ, ये आईपी कैमरा है। आपको अभी यहाँ पे स्निफिंग करके आपको क्या मिला, आपको स्निफिंग करके ये मिल गया कि भाई साहब कि उसका मैक एड्रेस क्या है वो पता चल गया, और डीऑथ पैकेट में आपको क्या भेजना है, मैक एड्रेस ऑफ एपी एड्रेस एक्सेस पॉइंट और मैक एड्रेस ऑफ ए। ये दो आपको डीऑथ पैकेट है, डीऑथ मैक एड्रेस ऑफ एक्सेस पॉइंट एंड मैक एड्रेस ऑफ ए। तो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली और इनफाइनाइट टाइम भेजना है। इनफाइनाइट टाइम भेजने के लिए कमांड है -0। 0 बोला तो इनफाइनाइट टाइम, जब भी आप काउंट लिखते हो तो उतनी टाइम जाता है, 4 टाइम, 3 टाइम, 43 टाइम्स वैसे जाएगा। जब भी आप 0 लिखते हो दैट इज इनफाइनाइट टाइम, कंटिन्यूसली भेजेगा, ये कभी आपका इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो जाएगा। एंड यू हैव डिसेबल दैट वाईफाई एक्सेस पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। इतना इजी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, यू कैन ट्राई इट ऑन द नोड MCU, रास्पबेरी से लेके अपना एक मशीन पे काली लिनक्स रखो, एक रास्पबेरी पाई डिवाइस रखो, और घर पे एक एक्सेस पॉइंट रखो, और काली लिनक्स से कनेक्ट होकर उसको वाईफाई करने के लिए भी आपको USB बूटेबल लगेगा। तो बूटेबल USB कैसे बनाना है उसका वीडियो भेजता हूँ, ताकि वो करते बैठे तो आप लोग सीखोगे नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा अटैक्स। तो मैं आपको वीडियो में इसके 3-4 वीडियो बना के रखा है, आई टू जस्ट शेयर इट विथ यू। You can easily create a bootable and try out this particular attacks on the net. Okay, so these are the 2 examples that you can do on the IoT devices. As a timer running, हम लोग अभी थोड़ा practical implementation पे आते हैं. Okay, I just want to give some ideas, those who are doing a research or those who want to give a project to a student, or who want to evaluate a project of the student, or who want to write a papers. You can easily write a papers by doing or using this concept. सब मतलब कुछ ऐसा ऑलरेडी पेपर्स नहीं है, एवरीथिंग इज ओरिजिनल कंटेंट विच आई एम शेयरिंग, और मतलब इन प्रोग्रेस वर्क है, तो आप अपना उसमें मॉडिफिकेशन करके यूज कर सकते हो। चलो, पहला है डॉस अटैक अगर सिस्टम पे होता है तो हाउ टू प्रोटेक्ट इट। देखो सिंपल तरीका है, जब भी आपका कोई भी डिवाइस है जिसके ऊपर डॉस अटैक होता है, तो डॉस अटैक के अंदर क्या क्या फ्लडिंग हो सकता है, ICMP फ्लडिंग, जैसे पिंग, बाकी सब पैकेट फ्लडिंग हो सकता है, या TCP फ्लडिंग हो सकता है। हम लोग ये 3 प्रोटोकॉल पकड़ के चलते हैं। These are the 3 floodings that will be occur. फ्लडिंग मतलब डॉस अटैक मतलब क्या, अगर सपोज आपके यहाँ दोस्त है, उसको है ना किसी का फोन आने वाला है, अपने को आने नहीं देना उसको वो फोन, what we will do, we all will call that particular person, and will not talk with him, we'll just connect, ring, disconnect. What will happen, a genuine person who is trying to connect to that particular person will get engaged tone, and he will not be able to have access to the services. The similar way a DOS attack or a distributed denial of service attack can be done. Okay, to do that attack, there can be a protocol which can be used, or most commonly used are ICMP, UDP and TCP for IoT devices. अगर ये टेक्निक अगर यूज करते, आपको इतना जो यहाँ पे दिखा है ना, उतना भी आप करोगे आपके रास्पबेरी पे,
मैं पाइथन स्क्रिप्ट में रास्पबेरी के हिसाब से विच हैज सम पाइथन स्क्रिप्टिंग, जीरो रास्पबेरी जीरो पे जहाँ पे प्रोसेसिंग हो सकता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट यूज अ स्निफिंग ऑन अ वायरलेस इंटरफेस थ्रू विच यू आर कनेक्टेड, और इसको थ्रेड में रन करना है, इसको थ्रेड में रन करना है। आपका जो प्रोग्राम है, जो कुछ है, अगर आपने सपोज रास्पबेरी पाई बेस ऑटोमेटेड कार का बनाया है या सिग्नल सिस्टम बनाया है, आप क्या करो, अपना सिग्नल सिस्टम थ्रेड चला, और ये थ्रेड आपका हमेशा कंटिन्यूसली 0.5 सेकेंड्स पे रनिंग होना चाहिए या उससे भी कम। मैं 0.5 प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट की जब आप टेस्टिंग करते हो तभी के लिए बताओ, कंटिन्यूस आप रनिंग रखो। आप क्या कर रहे हो, यू विल बी स्निफिंग ऑन टू द पर्टिकुलर पैकेट एंड गेटिंग अ पैकेट हैंडलर। टाइम आउट दे सकते हो, मैंने टाइम आउट ज़्यादा रखा है ताकि ओवरलोड ना हो। यू शुड ओपन अ पैकेट इन द रीडिंग मोड एंड जस्ट ट्राई आउट टू फाइंड आउट द काउंट करना शुरू करो। आप क्या करो, काउंट करना शुरू करो। In that count, whenever you find, this is a script where it will be finding out the IP address. Word count item है ना, K and W, तो उसमें आपको IP address मिलेगा। ये आपको स्क्रिप्ट में दे देता हूँ। इसमें आपको क्या मिलेगा, काउंट द पैकेट फ्रॉम द सेम IP एड्रेस। आगे फिल्टर है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर ये कट हो गया। मैं आपको है ना बताता हूँ कि AW के स्क्रिप्ट कैसे होता है, वहाँ पे सिर्फ IP एड्रेस बाहर निकला जाता है और IP एड्रेस को काउंट किया जाता है। जितनी बार अगर IP एड्रेस काउंट होते जा रहा है एंड इफ इट इज मोर देन 200, आप थ्रेशोल्ड वैल्यू जो भी रख सकते हो, अगर है तो आप बोलोगे ये IP एड्रेस, वी विल बी बैनिंग दैट IP एड्रेस एंड यू विल रन अ IP टेबल विच विल ड्रॉप दैट IP एड्रेस कंप्लीटली ब्लॉक करेगा। अगर आपका वेब बेस्ड IoT डिवाइस एप्लीकेशन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर सम ड्यूरेशन, क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन रहता है तो आप कोई भी IP को परमानेंट ब्लॉक नहीं कर सकते। तभी आपको क्या करना है, उसको 3 या 4 मिनट के लिए ब्लॉक करना। इससे क्या होता है, द पोटेंशियल, द वे ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अटैक ऑन योर कंप्यूटर विल गेट रिड्यूस। अगर वो मल्टीपल IP से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस से अटैक करना चाहता है तो भी आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या करना है, कम करना है। थ्रेशोल्ड वैल्यू कम करना है तो क्या हो जाएगा, वो IPs जो नोट होते जाएंगे 5 या 8 रखना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा कि इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो यू विल ट्राई टू रिड्यूस डाउन द IP। अब और एक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट तरीका है, दिस इज सिंपलेस्ट वे यू कैन इम्प्लीमेंट दिस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस प्रिवेंशन। कैसे करना, दिस सिंपलेस्ट वे यू कैन डू बाय प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आप थियोरिटिकल में लिखने जाओगे तो यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू डिजाइन एल्गोरिथम, देन यू हैव टू टेस्ट इन द सिमुलेटर। पर मैं आपको प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि व्हाट यू कैन डू। फाइन, जब ये अभी इसको लिख के आप एक पेपर बना सकते हो, फिर उसमें सिमुलेशन में टेस्टिंग कर सकते हो कि कितने आपने भेजे, आपने विथ सिंगल IP, विथ मल्टीपल IP, विथ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। फिर अलग अलग टूल्स है, एचपिंग 3 जो कि टूल्स आप बोले हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, आपको काली लिनक्स में जाके एचपिंग यूज करना है। एचपिंग आपके लिए ये सब काम कर देगा, सारे काम कर देगा। मतलब आई जस्ट शो यू टू यू। एचपिंग का, हाँ जी सर, मैं बना के रखा था। ये भी आपको टेक्स्ट फाइल देगा, ये ड्राइव लिंक शेयर करूंगा, उसके अंदर ये सब टेक्स्ट फाइल है। जब भी आप देखोगे you can see the command that will be generating a denial of service attack। और एक तरीका है, अगर आपका रास्पबेरी बेस है और आपका सर्वर है तो आपको सिर्फ पता करना है कि आपके ऊपर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू हैव टू जस्ट हिट दिस कमांड। आपको एक कमांड लेके पता चलेगा कि आपके पास कितने IP कनेक्टेड है और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ कि नहीं। सिंपल एक कमांड। और एक है कमांड जो आपको बता, आपका अगर वेब सर्वर है, अगर आपका रास्पबेरी पाई और IoT डिवाइस वेब सर्वर है या फिर आपका क्लाउड बेस्ड सर्वर आपने होस्ट किया, उसके ऊपर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपको चेक करना है तो यू हैव टू जस्ट हिट दिस पर्टिकुलर कमांड, दिस 2 कमांड, grep processor pros CPU info word count -l और अप टाइम। अगर ध्यान रखने का, आपको 3 एवरेज में एवरेज टाइम आएगा, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 मिनट। और वहाँ पे आपको अगर नंबर जो आ रहा है एवरेज में, अगर 7 के नज़दीक है, 7 के ऊपर है, समझ जाने का कि अपने वेब सर्वर पे या फिर अपनी क्लाउड डिवाइस पे अटैक हुआ है या हो रहा है। तो दिस हाउ टू चेक वेदर अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हैज बीन डन। आपको कौन से IP ने किया है, अगर कमांड से चाहिए, पाइथन स्क्रिप्ट से नहीं चाहिए, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कमांड
एंड दिस आर द मिटिगेशन स्टेप्स। आपको मिटिगेशन स्टेप बहुत कम जगह पे मिलेंगे। आपको ऊपर का मिलेगा कि हाउ टू डू एन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऑन द रास्पबेरी पाई और ऑन द डिवाइसेस, पर ये मिटिगेशन स्टेप्स आपको बहुत कम जगह पे मिलेंगे और ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कुछ भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। फाइन। तो ये आपको एक ड्राइव शेयर होगा, उसमें ये सब स्क्रिप्ट्स है जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। फाइन। वी हैव मोर 10 minutes. Any questions? हाउ टू स्टार्ट अ मोबाइल फोन इन अ मॉनिटरिंग मोड। नहीं, आपको इसके लिए वाईफाई अडेप्टर लेना पड़ेगा मैम, जिसको आप मॉनिटरिंग मोड में ऑन कर सकते हैं। मोबाइल फोन जब भी आप कनेक्टेड नहीं होते तभी मॉनिटरिंग मोड में रहता है। अगर आपका डिबगिंग ऑप्शन है और एंड्रॉइड यूएस आप शेल से एक्सेस कर सकते हो, तो कमांड इज airmon ng आपका इंटर कमांड है जो कि एक एयर इंटरफेस को मॉनिटरिंग मोड में ऑन करता है। इस डेटा रिसीव्ड फ्रॉम IoT डिवाइस एंक्रिप्टेड, मतलब कौन से सेंस में आप बोल रहे हो कि कहाँ से, मतलब कैसे आप भेजोगे तो एंक्रिप्ट होगा बाहर से, और जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसमें एंक्रिप्टेशन नहीं है। MQTT डायरेक्ट एंक्रिप्शन नहीं करता, आपको इनेबल करना पड़ता है। तो अगर आप एंक्रिप्ट करोगे या फिर आप एडिशनल प्रोटोकॉल यूज करोगे तो एंक्रिप्टेड है, नहीं तो नहीं रहता एंक्रिप्टेड। जब भी आप वाईफाई कम्युनिकेशन करते हो तो यस बाय डिफॉल्ट इट इज एंक्रिप्टेड यूजिंग WPA2 एंक्रिप्शन एल्गोरिथम। वही तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना। अपने को पासवर्ड मिला ना, उसके बाद वाईफाई पासवर्ड किसी का इंटरनेट या एक्सेस पॉइंट एक्सेस करने के लिए नहीं लेते, हम लोग उनके बीच में क्या बात चालू है ना वो सुनने के लिए लेते हैं। So when you are connected to a Wi-Fi access point by using a WPA, it is encrypted between access point and the IoT devices. Fine? चलो, वही मैंने बताया। और BSNL sets the password which is given to by telephone bill. Yes, BSNL and MTNL में वही होता है आपका वो। Yes, you can change it. You can change it. Just Google how to change the router password by the for the BSNL या router password for MTNL. अभी आपके आजू बाजू वाले जो लोग रहेंगे उसमें से अगर मेरे जैसा कोई रहेगा तो आपका एक्सेस पॉइंट आराम से यूज कर सकता है, नॉट फॉर फ्री इंटरनेट। पर अगर कुछ गलत चीज वो अपने आपके एक्सेस पॉइंट से भेजेगा तो आपको पकड़ा जाएगा क्योंकि आपका IP वहां पे नोटेड है। तो ये ध्यान में रखने का। फाइन, तो प्लीज चेंज इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नो क्वेश्चन ऑन दिस, स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। तो विच देखो ट्राई एंड एरर करते रहेगा। ये स्क्रिप्ट बना कैसे, इसमें आधा पार्ट हाउ टू काउंट IP एड्रेस फाइंड आउट करके स्क्रिप्टिंग किया, फिर उसका काउंट किया, उसका फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट किया, फिर OS कमांड फॉर राइटिंग अ कमांड ऑन द टर्मिनल विदाउट ओपनिंग अ टर्मिनल। ऐसे सर्च कर करके बनाया गया कोड है, कुछ भी पहले से डिजाइन करके या फिर फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैसे ऐसा नहीं लिया गया। तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। एक कंसेप्ट है जो कि आप लोग यूज, अभी ब्लॉकचेन अगर आपने यूज किया रहे, सुबह सुना रहेगा, उसमें एक प्राइवेसी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको, फिर आपको ये ना बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर कोई लोग काम करना चाहते हैं इन प्राइवेसी ऑफ IoT डिवाइसेस, रिसर्च करना चाहते हैं, इज वेरी गुड टॉपिक वेयर यू कैन डिजाइन एंड टेस्ट एंड सिमुलेट दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल जो मैं बता रहा हूँ। और इसका प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन IoT डिवाइसेस नहीं है, तो आप यूज कर सकते। ब्लॉकचेन में है पर अदर कंसेप्ट में है, तो आप ये यूज कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है, डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, प्राइवेसी डिटेक्शन, प्राइवेसी प्रिजर्वेशन, डिसेंट्रलाइज, देयर इज नो सेंट्रलाइज कंपोनेंट व्हिच विल बी टेकन इनटू द केयर, जो यूज करके आप किसी का प्राइवेसी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज योर एज, प्रूव योर एज। अगर आप कहाँ पे जाते हो और आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एज, तो आप क्या देते हो, आपका आधार कार्ड देते हो, राइट। यू गिव योर आधार कार्ड। आपने आधार कार्ड के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, देखो, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट एंड आधार कार्ड नंबर। फाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन। आपको पूछा क्या था, प्रूव यू आर अबव 18, प्रूव यू आर अबव 18। आपने उसको क्या प्रोड्यूस कर दिया, आधार कार्ड प्रोड्यूस कर दिया। देखो यहाँ पे है ना कि आपने को प्रूव करना है कि मैं वही हूँ। IoT डिवाइस को प्रूव करना है कि आई एम अ राइट डिवाइस, या फिर एक्सेस पॉइंट या फिर क्लाउड को प्रूव करना है क्या है
क्योंकि हम लोग प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क विच इज फॉर्म बाय द नोड्स ऑफ द IoT। तो वहाँ पे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे अगर कोई प्रूव करते समय अगर आप पूरे क्रेडेंशियल दे देते हो तो यू आर मेकिंग योरसेल्फ मोर वर्नेबल, यू आर रिलीजिंग योर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। तो उससे अच्छा आप बोलेंगे सर ठीक है मैं ये नहीं दूंगा, मैं अपना सिर्फ बर्थ डेट दे दूंगा। जब भी आप किसी को अपना बर्थ डेट देते हो तो भी देखो क्या देते हो, तो यू गिव अवे योर बर्थ डेट, योर बर्थ डेट। तो ये आपने बर्थ डेट देते हो, आपको क्या पूछा, यू आर अबाउ 18, आपने उसको और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, मंथ, डे एंड ईयर। अबाउ 18 प्रूव करने के लिए यू शुड हैव ओनली रिलीज यूर, सॉरी क्या 65 है ना वहाँ पे, हाँ 65, यू शुड हैव ओनली रिलीज योर बर्थ ईयर, नॉट इवन द कंप्लीट बर्थ डेट, नॉट इवन अ कंप्लीट आधार कार्ड और अ पैन कार्ड और एनी अदर। मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। समझ में आया? अरे आपको पूछा क्या, प्रूव दैट यू आर अबव 18, व्हाई आर यू प्रोड्यूसिंग योर क्रेडेंशियल्स ओपनली टू द, वो सामने वाला सही है गलत है क्या पता, उसने सिर्फ आपको 18 के ऊपर पूछा ना, तो आपको आपके क्रेडेंशियल्स में से सिर्फ उतना ही दिखाना है कि आप का बर्थ ईयर क्या है, उससे काफी हो गया ना, यू आर अबव 18 का पता चल जाता है। अलॉन्ग विद आप बोले सर आप किसी का भी ईयर बोल सकते हो, हाँ फिर अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव अ ID or the या फिर privacy key or private key of the, sorry, have a signature of the providing authority, जैसे आधार कार्ड का प्रोवाइडिंग अथॉरिटी का सिग्नेचर विद बर्थ ईयर। अगर ऐसा रहेगा तो सामने वाले को मानना कंपल्सरी है ना। बस यही कंसेप्ट याद रखो, डू नॉट रिवील योर आइडेंटिटी और ओपनली टू एवरीवन वेयर यू हैव क्रिएटिंग अ प्राइवेसी इशू। इसके ऊपर आप सोच सकते हो या फिर डिजाइन कर सकते हो या रिसर्च आउट कर सकते हो। How and decentralized privacy authentication mechanism can be brought into the IoT devices in such a way that minimal only the required credentials will be released to prove the identity. पूरा इंफॉर्मेशन रिवील करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ये है, अभी सपोज हम लोग कार लेते हैं, अभी एम्बुलेंस और मैंने कार के बीच में लिया है, ओके कार लेते हैं या एम्बुलेंस लेते हैं, वेन एवर यू आर बाइंग अ न्यू कार और हैविंग है, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, इनिशियल प्रोसेस, उसको बोलते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी या डिपार्टमेंट कर सकता है, विच गिव अ क्रेडेंशियल ऑफर कि भाई साहब एक फॉर्म फिल कर, आप एक फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन जिसमें जेसन वैल्यू आप फिल करोगे, उसका जेसन वैल्यू लिया जाएगा, सब आपका गाड़ी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, आपका नाम भी सब 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 लिया जाएगा, जो कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे हुआ जाता है। That information is taken by you, by the department. Department sign that with the signatures of that particular, which is the trusted authority. मैंने बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, ध्यान रखो, बाद में आप उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, रिक्वेस्ट है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसका स्कीमा, उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप मल्टीपल क्रेडेंशियल्स क्रिएट करोगे। अगर आपके कार के रिलेटेड है या फिर डिवाइस के रिलेटेड है तो टाइप ऑफ अ कार का एक क्रेडेंशियल क्रिएट करूंगा, उसको मैं साइन करके रख दूंगा, एज ऑफ द कार्ड, देन द PUC ऑफ अ कार, देन द रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कार, ओनर डिटेल ऑफ द कार, ऐसे सारे क्रेडेंशियल्स के स्ट्रक्चर्स में क्रिएट करके रख दूंगा और वो सारे क्रेडेंशियल्स को मैं साइन करूंगा, सेंट्रल अथॉरिटी पे रहेगा और किसके पास जाएगा, इट विल गो टू द व्हीकल। व्हीकल के OBU में टैंपर प्रूफ डिवाइस में, जैसे IoT डिवाइस है उसमें वो स्टोर्ड रहेगा, वो स्टोर रहेगा। सेम कैन बी डन विद द एम्बुलेंस ऑल्सो, सेम कैन बी डन विद द एम्बुलेंस, वो मैंने दिखाया नहीं है। पर जब भी अभी सपोज रोड पे एम्बुलेंस कोई डिसएडवांटेज ना ले, एम्बुलेंस कोई डिसएडवांटेज ना ले, तो हमको कार क्या बोलती है, तू मुझे एम्बुलेंस है कि नहीं प्रूव कर, तो ही रिक्वेस्ट टू द पैरामीटर आइडेंटिटी रिक्वेस्ट दैट यू आर एम्बुलेंस। तो ये एम्बुलेंस क्या करेगा मालूम है, अपने OBU स्टोर में से सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ द व्हीकल इक्वल टू एम्बुलेंस रहेगा, इसका क्या रहेगा, टाइप ऑफ द व्हीकल इज इक्वल टू कार रहेगा, वो क्रेडेंशियल से बाहर निकालेगा और इसको प्रूफ करके भेज देगा। ओनली द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल और रिक्वेस्टेड क्रेडेंशियल और आइडेंटिटी क्रेडेंशियल वो रिलीज करेगा, ना इसका नाम, ना इसका रजिस्ट्रेशन डिटेल, ना इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ओनर, ड्राइवर, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसको क्या चाहिए था, भाई साहब तू एम्बुलेंस है कि नहीं है,
And when he comes to it, he checks that it is an ambulance, but him to verify that वो सही है कि नहीं. तो इनका जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जैसे आधार कार्ड का सेंट्रलाइज अथॉरिटी, वैसे पब्लिक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है, उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि भाई उसका सिग्नेचर इसके पास भी स्टोर है ओबीयू में और इसके पास भी स्टोर है, तो वो उससे डिक्रिप्ट करके चेक करेगा कि इट इज बीइंग गेटिंग डिक्रिप्टेड और नॉट. इफ यस देन इट इज अ एम्बुलेंस. मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं इसका, और इसमें रिसर्च करके इसका ड्रॉबैक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अला सकता है. तो दिस इज द वे देन identity management can be done and the privacy can be Excuse me, preserved. sir. Really Yes. sorry to interrupt you, but we are going slightly over time. Yeah, no problem. I'll just end up. Absolutely, sir. Thank you so much. Okay, fine. I just end up. If you have any question, I just give my details. मैंने और एक रखा था आपके लिए, but fine, no problem. You can connect to this. और मैं एक ड्राइव और 2-3 वीडियो शेयर करूंगा ऑर्गेनाइजर्स का. दे विल मेल डाउन टू यू सो दैट यू कैन सी द अटैक्स टेक्निक्स ओवर देयर इम्प्लीमेंटेड. कैसे किया उसके स्टेप्स भी है, पीडीएफ भी है, सब है, और सारे स्टेप्स आपके टेक्स्ट फाइल में है कमांड के साथ. तो यू कैन जस्ट ट्राई आउट एंड लर्न अबाउट इट. होप माय द थिंग दैट आई ट्राई टू कन्वे यू विद इन दिस गिवन टाइम was perfect or up to the mark. What I just tried to give away to you. Hope I was up to the mark. Thank you very much. Thank you for attending and listening to me. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightenment and sharing your practical and huge experience with us. A lot of us have gained many insights into this area from you, and a lot of things from practical aspect what you've explained or told us and discussed from the question point of view were really nice. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Shall I leave now? Should I disconnect We right now? request you to accept this memento from us, a virtual memento. Very much. Just a second, I will get it. Thank you. Okay, ma'am. Thank you very much.